بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو تھرڈ لیکچر آف مسلم پرسنل لاء۔ مسلم پرسنل لاء کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم اس لیکچر میں مسلم فیملی لاء آرڈیننس 1961 کے سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کریں گے۔ اس آرڈیننس کو MFLO 1961 کہا جاتا ہے، جس کا پورا نام بنتا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961۔ ایکسٹینڈ کرتا ہے پورے پاکستان تک اور اپلائی ہوتا ہے پاکستان میں موجود تمام مسلمانوں پر، اور یہ آرڈیننس جو ہے وہ باقی قوانین کو اوور رائڈ کرے گا، یعنی کہ جہاں پر دوسرا قانون لگا ہوگا اور یہ آرڈیننس کی بات سامنے آئے گی تو اس آرڈیننس کی بات پریویل کرے گی اور دوسرے لاء کی بات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آرڈیننس کے اندر جو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی ہے آربیٹریشن کونسل۔ آربیٹریشن کونسل سے کیا مراد ہے؟ باڈی کنسسٹنگ آف چیئرمین اینڈ ریپرزینٹیٹیو آف ایچ پارٹی، کہ ایک ایسی باڈی جس کے اندر علاقے کا چیئرمین اور ایچ پارٹی سے مراد ہے یہاں پر نکاح کی پارٹیز، ان کے ریپرزینٹیٹیو، ثالثی کونسل ہے بیسیکلی۔ یہ آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے ثالث۔ تو کوئی بھی لڑائی جھگڑے کی صورت میں جب معاملات طے کرنے ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر پارٹیز جب آپس میں بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی تو کوئی نہ کوئی ثالث مقرر کیا ہوتا ہے کوئی انہوں نے، تو وہ ثالث اور چیئرمین یہ مل کر آربیٹریشن کونسل بناتے ہیں۔ چیئرمین کی بات کریں مینز چیئرمین آف یونین کونسل اور پرسن اپوائنٹڈ اور آفیسر آتھورائزڈ بائی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ، کہ چیئرمین سے مراد اس یونین کونسل کا چیئرمین ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا آفیسر جس کو آتھورائز کیا گیا ہو، اختیار دیا گیا ہو، کس نے دیا ہو؟ پروونشل گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ نے یا وفاقی حکومت نے، تو وہ ایسا بندہ چیئرمین کہلائے گا۔ یونین کونسل سے کیا مراد ہے؟ Union Council means Union Council or Town Union Committee constituted under Basic Democracies Order 1959، کہ 1959 کے بیسک ڈیموکریسیز آرڈر کے تحت جو بھی ٹاؤن کمیٹی یا یونین کمیٹی بنائی گئی ہوگی اس کو ہم یونین کونسل کہیں گے۔ سیکشن 4 کی بات کریں، سیکشن 4 ہمیں سکسیشن کے بارے میں بتاتا ہے، وراثت کے بارے میں، In case father or mother dies, children will be entitled to same amount of share from grandparents as their deceased parent would have received if alive۔ کہ اگر کسی بچوں کے والدین میں سے ماں یا باپ مر جاتی ہے تو بچوں کو گرینڈ پیرنٹس کے پراپرٹی میں سے، یعنی اپنی دادی دادے کی یا نانی نانے کی پراپرٹی میں سے اتنا ہی شیئر ملے گا جتنا کہ ان کے مرے ہوئے ماں یا باپ کو ملتا۔ یعنی کہ اگر ایک بچے کا باپ مر گیا تو بچے کو دادے کی جائیداد میں سے اتنا حصہ ملے گا جتنا کہ اس کے باپ کو ملنا تھا۔ سیکشن 5 رجسٹریشن آف میرج کی بات کرتا ہے۔ MFLO ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایوری میرج شیل بی رجسٹرڈ، کہ ہر نکاح، ہر شادی کو رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی نہیں کروائے گا تو پھر اس کو جرمانہ ہوگا، پھر وہ پنشیبل ہو جائے گا۔ یونین کونسل شیل گرانٹ لائسنسز ٹو نکاح رجسٹرارز، اب ہوگا کس طریقے سے کہ جی نکاح رجسٹرار کو لائسنس جاری کرے گی یونین کونسل،
किस बात का कि वो निकाह को रजिस्टर करवा सके। निकाह रजिस्ट्रार शैल एक्यूरेटली फिल ऑल कॉलम्स ऑफ निकाह नामा एज पर आंसर्स ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, कि दूल्हा और दुल्हन के जवाबात की रोशनी में जो निकाह रजिस्ट्रार है वो निकाह नामे के कॉलम्स को बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करेगा। मतलब नाम उनका, वल्दियत, उम्र, मैरिटल स्टेटस, डावर की जो है वो अमाउंट, और मंथली जो कुछ भी है, जितने भी उनके मामलात आपस में तय होंगे, निकाह रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी है कि वो एक्यूरेटली तौर पर उनको निकाह नामे में फिल करे। इफ़ मैरिज डन विदाउट निकाह रजिस्ट्रार इट शैल बी रजिस्टर्ड टू हिम बाय द पर्सन हु हैज़ सोलमनाइज्ड परफॉर्म्ड सच मैरिज। अगर कोई ऐसे निकाह की, ऐसी शादी की गई है जिसमें निकाह रजिस्ट्रार को नहीं बुलाया गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसी शादी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कौन करवाएगा? जिस बंदे ने वो शादी की होगी, यानी कि दूल्हा जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आगे लॉ हमें बताता है कि whoever contravenes provisions of subsection 3 shall be punishable with simple imprisonment up to 3 months or fine up to ₹1000 और both। कि अगर कोई शख्स निकाह को रजिस्टर नहीं करवाता तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। क्या सज़ा मिलेगी? उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सादा कैद हो सकती है 3 महीने तक, या 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों बातें हो सकती हैं। सब सेक्शन 4 में अमेंडमेंट है एक पंजाब के लिए, वो ये कि इफ़ अ पर्सन कॉन्ट्रवीन्स सब सेक्शन 2A, अगर कोई शख्स सब सेक्शन 2A की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको 1 माह तक कैद होगी और 25,000 रुपये जुर्माना होगा। और अगर कोई शख्स सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर उसको 3 माह तक कैद होगी सिंपल, और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। निकाह नामा फॉर्म शैल बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार्स। अब निकाह नामा के जो फॉर्म्स हैं उनको मेंटेन रखना जिम्मेदारी है निकाह रजिस्ट्रार की। एंड रिकॉर्ड शैल बी प्रिजर्व्ड बाय यूनियन काउंसिल्स, और जो निकाह होंगे उनका जो रिकॉर्ड है वो यूनियन काउंसिल के पास महफूज पड़ा रहेगा। एंड प्रिस्क्राइब्ड फ़ी शैल बी पेड बाय द पार्टीज़, और जो निकाह करने की पार्टीज़ हैं वो फ़ीस जमा करवाएंगी। प्रिस्क्राइब्ड से मुराद है जो गवर्नमेंट ने तय की होगी। एंड कॉपीज़ ऑफ निकाह नामा शैल आल्सो बी सप्लाइड टू देम, और निकाह जिन पार्टीज़ ने आपस में किया है उनको निकाह नामे की कॉपीज़ भी सप्लाई की जाएंगी। ये जिम्मेदारी होगी निकाह रजिस्ट्रार की कि वो उस निकाह नामे को रजिस्टर करवाए, जाकर यूनियन काउंसिल में रिकॉर्ड में जमा करवाए और कॉपीज़ सप्लाई करे पार्टीज़ को अपॉन द पेमेंट ऑफ फ़ी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड एट ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल। अब लॉ ये बता रहा है कि यूनियन काउंसिल के ऑफिस में कोई भी शख्स प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जमा करवा कर जाके यूनियन काउंसिल में मौजूद जो रिकॉर्ड है उसको देख सकता है। पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। सेक्शन 5A की बात करें तो प्री मैरिटल ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट के, शादी से पहले ब्लड टेस्ट। लॉ ये कहता है कि मैरिज शैल बी सोलमनाइज्ड ओनली इफ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स सबमिट देयर मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट फ्रॉम एन ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर। कानून के मुताबिक 2 अफराद जो शादी करने जा रहे हैं, यानी लड़का और लड़की, शादी से पहले, निकाह से पहले उनको अपनी मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करवाने होंगे जिसमें उनका ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया होगा। और वो टेस्ट कहाँ से करवाने होंगे? किसी भी ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से उनको वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स इशू करवाने होंगे, अदरवाइज मैरिज रजिस्टर नहीं होगी। सेक्शन 5B अटैचमेंट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी मैंडेटरी। सेक्शन 5B ये कहता है कि निकाह के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का साथ में अटैच करना लाजमी है। निकाह रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर अ मैरिज ओनली अपॉन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ प्री मैरिटल ब्लड स्क्रीनिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स के निकाह रजिस्ट्रार की यह जिम्मेदारी है कि सिर्फ उसी सूरत में ही निकाह को रजिस्टर करे जिस वक्त जो 2 लोग आपस में शादी करने जा रहे हैं उनके मेडिकल सर्टिफिकेट जो हैं वो साथ लगाए जाएं। किस चीज़ के?
प्री मैरिटल ब्लड स्क्रीनिंग के, तो ब्लड टेस्ट किए जाएं उनके वो इसलिए ब्लड टेस्ट किए जाएं ताकि उसमें देखा जाए कि इनको कोई ख़तरनाक ऐसी बीमारी तो नहीं है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती हो, जैसे कि एड्स है, STD है, वगैरह वगैरह। सेक्शन 6 पोलीगेमी, ये सेक्शन क्या बताता है? मैन कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट अनदर मैरिज, के एक शख्स दूसरी शादी उसी वक्त कर सकता है ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग मैरिज, यानी दूसरी शादी, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कब कर सकता है? ओनली बाय द रिटन परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल, के अगर वो आर्बिट्रेशन काउंसिल से तहरीरी इजाज़त ले लेता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ तो फिर ही कर सकता है। Application shall be submitted to chairman in prescribed manner along with prescribed fee and reasons of another marriage, and shall also express whether the consent of existing wife has been obtained। तो लॉ अब ये बता रहा है कि एप्लीकेशन लिखेगा वो शख्स जो दूसरी शादी करना चाह रहा है, किसको? चेयरमैन को, उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, उस तरीके से जो लॉ ने हमें बताया, और वो जो फ़ी प्रिस्क्राइब्ड है वो भी जमा करवाएगा, और दूसरी शादी करने की रीज़न्स लिखेगा कि पहली बीवी मेरे हकूक़ नहीं अदा कर सकती, या वो बहुत ज़्यादा बीमार है, या वो फातरुल अक्ल हो चुकी है, या वो डेथ बेड पर है, या कोई भी और रीज़न है, क्या वो नाफरमान है, या वो मेरे साथ नहीं रहती, कोई भी रीज़न लिखेगा। एंड शैल आल्सो एक्सप्रेस वेदर द कंसेंट, और साथ ये भी उस दरख्वास्त में मेंशन करेगा कि क्या दूसरी शादी करने के लिए उसने पहली बीवी की इजाज़त ली है या नहीं ली। ये तमाम बातें जब एप्लीकेशन के अंदर वो लिखेगा, और फिर वहाँ से अगर उसको रिटन परमिशन मिल जाती है तो फिर उस सूरत में वो दूसरी शादी कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर हम आप तक पहुँचाने में कामयाब रहे होंगे। फिर भी अगर कोई बात मज़ीद पूछनी रह गई हो या कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं brilliantlawcollege@gmail.com पर, या हमें फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं facebook.com/brilliantlawcollege। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।